Hey, very good afternoon, students. So we are back and the classes is still on. Today we would be covering the chapter Indigo, right? So first I'll just tell you what the chapter is about before we begin. I'll just tell you in a gist, in a nutshell कि इस चैप्टर में है क्या, and उसके बाद we would start reading with the text. Get the point? So, you are ready? Notebooks ready? Okay. So, this particular chapter by Louis Fisher, right, endeavors about how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged peasants of Champaran. Champaran is a place you can find out exactly where it lies, but Champaran is the name of a place, and nowadays you must be listening to a name much related to it, which is मटन चंपारण या चंपारण मटन. ठीक है, आजकल ये बहुत पॉपुलर हो गया है. तो बेसिकली ये डिश वहीं से ढूंढ करके लोगों ने निकाली है. तो ये वहां के चंपारण के जो पीजेंट्स हैं. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीजेंट्स? Yeah, you can call them as residents, underprivileged. Underprivileged means what? Underprivileged means exactly opposite to us. Us means like all the general facilities which we have, the electricity, the water supply, the sanitization, sewage, proper houses to live in, and all the general basic facilities which we have is known as the privileges. So people who do not have such facilities, basic facilities, clothing, right, a shelter to live in, securities, and securities for the family. कभी भी कोई भी आकर के उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, उन्हें तंग कर देता है. और cleanliness, right, washrooms, etc. So many things. So such people जिनके पास ये सारी सुविधाएं, कॉमन सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, उन्हें हम अंडर प्रिविलेज्ड पीपल कहते हैं. तो ये चंपारण जगह के अंडर प्रिविलेज्ड रेजिडेंट्स की कहानी है, जिनको who got struggled by our father of the nation, Mr. Mohandas Karamchand Gandhi, right? तो किस तरह से they were the sharecropper with the British planters. तब उस समय Britishers were ruling India. We were under the rule of the British, and the farmers, since we all know एक कृषि प्रधान देश है हमारा, and farmers have a majority. Basically, that is our work, which should be taken care of, which should be maintained,
और जिसको काफी सपोर्ट और ध्यान मिलना चाहिए, जो कि मिल नहीं पाता है। अलास फॉर दैट। सो उस समय ब्रिटिशर्स के लिए वो फसलें लगाया करते थे, लेकिन उनको उसका उतना फायदा नहीं मिला करता था। The peasants used to live a wretched life and were under an agreement to grow indigo. As Bihar has the landlord system back then, it worsened their condition. समझ गए आप? एक और क्लू मिल गया आपको। चंपारण, हाँ, चंपारण इज इन बिहार। वो जो ब्रिटिशर्स उन्हें फार्मर्स को परेशान करते थे, फोर्स करते थे कि वो कुछ न कुछ जरूर उगाएं, और उगाने के बाद और ज्यादा चीजों ने, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि वहां पर उस समय एक तो ऑलरेडी सिचुएशंस बहुत खराब थी, उसके ऊपर वहां पर बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी, जिसने इस पूरे सिस्टम को एकदम और ज्यादा बर्बाद कर दिया था। Thus, गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। गांधी जी ने फैसला किया कि वो ये अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। He waged a war which lasted for a year to tackle the discrimination and got justice for the peasants. 1 साल तक वो लड़ाई लड़ी उन्होंने, और फाइनली वो जो लोग थे उनको उनका हक दिलवाया। After that, it helped the peasants become courageous and aware of their fundamental rights. उसके बाद वो खुद जागरूक हो गए, उन्हें पता चल गया कि भाई हम अगर फसल उगा रहे हैं तो कितने पैसे में हमें बेचना चाहिए, और कितना हमें ब्याज, कितना फायदा, कितना पैसा उसके बदले में मिलना चाहिए। पहले लोग उन्हें बेवकूफ बना के, फॉर एग्जाम्पल 1000 की फसल वो उगाते, लोग उनसे 1 रुपए में 1000 की फसल खरीद लेते थे, और ये 1 रुपए में क्या करते, बेचारे भूखों मर जाते, अपना उसके ऊपर 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स मुनाफा कमाते थे। दैट वॉज यूज्ड टू बी द सिनेरियो। और इसी तरीके से वो चलता रहता था जब तक गांधी जी ने उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी और उन्हें ये बात नहीं सिखाई कि उनको किस तरीके से अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। Moreover, गांधी जी did not just work to tackle the political issues or economical issues, but he also took up social issues. न सिर्फ पॉलिटिक्स, न सिर्फ इकोनॉमिक्स, बल्कि सामाजिक प्रॉब्लम जो थी उनको भी गांधी जी ने सुलझाया। He worked to provide them with education, health and hygiene, and taught them self-confidence. हेल्थ एंड हाइजीन, इसीलिए आजकल ये जो लोग इतने सालों के बाद, भाई चलता तो बहुत सालों से आया है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा, साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बिना साफ सफाई के कुछ काम नहीं हो सकता, और ये सभी चीजें मेंटेन होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए, और लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि लोग उस पर ध्यान देते कहां, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं क्रॉल अप हो जाती हैं, और उससे जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होगी ही। तो गांधी जी ने इन सभी चीजों को, इन सभी प्रॉब्लम्स को, इन सभी दिक्कतों को सॉल्व कराया, सॉल्व कराने में हेल्प भी करी, और लोगों को जागरूकता दिलाई कि अगर कोई आपके सामने रहे चाहे ना रहे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका खुद का जो अधिकार है, आपका जो आत्मविश्वास है, उससे आप अपने आत्मसम्मान को बचा सकते हैं। तो to sum up this chapter, we can say that how Gandhiji did not merely help freeing our country, but also for the betterment of his countrymen from the very start. Gandhiji taught the lesson of self-reliance, अपने पे खुद पे विश्वास रखना, and by not seeking help of any Englishman, Mr. Andrews. The main theme of this chapter, Indigo,
by Louis Fisher is how effective leadership can overcome any problem as shown by Mahatma Gandhi in securing justice for the oppressed people in Champaran through convincing arguments and negotiation. तो क्या हमें इस चैप्टर में पता चलता है? चंपारण की यह कहानी है, महात्मा गांधी ने जो वहां के लोगों को इंसाफ दिलाया। किससे? लीडरशिप और लीडरशिप, अगर अच्छी लीडरशिप हो, अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच सकता है, अगर उसे खुद पे विश्वास हो जाए। कहा जाता है ना कि अगर आपको खुद पे विश्वास है तो लीडरशिप अगर एक पर्सन के अंदर हो तो वो कोई भी काम किसी भी तरीके से कर सकता है। मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो तो आप 100 लोगों को अपने पीछे चलने पे मना सकते हैं, चलने के लिए कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें इस बात को समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो 100 लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता पैदा कर दी तो वो 100 से 1000, 1000 से 1 लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। और दिस इज हाउ नेशन, अ लीडर वर्क्स। अगर उन्होंने वो 100 लोगों ने आपको अपना लीडर मान लिया तो वो खुद ब खुद आपको आगे बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, अपने अधिकार के लिए वो चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में ये कहानी है। In order to break the deadlock, Gandhiji agreed to 25% return refund to the farmers. He wanted the poor farmers to realize that they too had rights and that they need not really live in fear of the British landlords. The conflict between the British planters and the peasants changed the plight of peasants. ठीक है, 25% का कुछ मामला था, जैसा कि मैंने बताया आपको। ब्रिटिशर्स उल्लू बना करके गरीब अनपढ़ फार्मर्स को बहुत परेशान करते थे और उनका नाजायज फायदा उठाते थे। सिर्फ उनके हक का 25% उनको दिया करते थे, जैसा कि मैंने आपको 1000 और 1 रुपये वाला एग्जाम्पल दिया। कुछ कुछ उसी तरीके से हुआ करता था। तो लुईस फिशर साहब ने ये लिखी है स्टोरी। लुईस फिशर नाउ ही वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया एंड ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। अब आप समझे, ये रियल स्टोरी है। फिशर साहब खुद ही ब्रिटिशर्स की आर्मी में, ब्रिटिश सेना में कप्तान वप्तान की किसी पोस्ट पे थे, सर्व किया था उन्होंने। और एज अ वॉलंटियर एक्चुअली खुद से बोल करके कि मैं भी आर्मी का हिस्सा बनना चाहता हूं। और वो इंडिया आए थे, उन्होंने यहाँ की
सिचुएशंस को देखा होगा, और जिस समय गांधी जी ये स्ट्रगल, ये मूवमेंट, ये काम कर रहे थे, उस समय वो भी यहाँ पर मौजूद रहे होंगे, तो वो इसके आंखों देखे गवाह हैं कि यहाँ पर इस कहानी में क्या क्या हुआ और किस किस तरह से गांधी जी ने अपने लोगों को उनका अधिकार दिलवाया। ठीक है, तो he made a great career of journalist in the New York Times as well. The Saturday Review and the European Asian publications also liked his work very much. He was also a member of the faculty of Princeton University. The following is an excerpt from his book only. उन्हीं की किताब से ये कहानी ली गई है, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर किताब लिखी थी एंड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में, जिससे ये एक्सर्ट, ये हिस्सा लिया गया है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, अर्ज द डिपार्चर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, हार्वर्ड मैन लाइक मी एंड सीक अ प्रॉप। ये सारी चीजें चैप्टर में आएंगी जिसे हमें नोट करना, देखना। ठीक है, तो आर वी रेडी? ओके। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. He had gone to December 1916 annual convocation of the it's not convocation, it's convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, and there were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi ji recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran, and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. हिमालय के बिल्कुल एकदम पैर पे, जहां हिमालय खत्म होते हैं, वहां पर नेपाल के बॉर्डर के करीब बिहार का ऐसा हिस्सा जिसे चंपारण कहा जाता है। अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, तो एक बहुत पुराना एग्रीमेंट था जिसके तहत चंपारण के लोग शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर माने जो भी क्रॉप, जो भी फसल वो उगाएंगे, उनको सरकार के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से अपनी क्रॉप्स कहीं भी नहीं बेच सकते। ठीक है, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज illiterate but resolute. He had come to the Congress station to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. उन्होंने आकर के राजकुमार शुक्ला जी ने ये बात बताई गांधी जी को और कांग्रेस के बाकी लोगों को कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स उन लोगों को परेशान करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं और कैसे उनको उनका अधिकार, उनका हक नहीं मिल पाता। तो उन्होंने ये सारी बात आकर के गांधी जी से और नेहरू जी से शेयर करी। तो गांधी जी ने उसका एक किसी ने उन्हें बता दिया था राजकुमार जी को कि स्पीक टू गांधी, और किसी तरीके से वो गांधी जी तक पहुंचे और फिर गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, this is Kanpur. Earlier it was known as Kawanpur, right? C-A-W-N, Kawanpur, old name of our very own Kanpur district. ठीक है, गांधी जी ने बताया कि उनकी कानपुर में एक मीटिंग है and was also committed to go to other parts of India. शुक्ला accompanied him everywhere. जहां जहां गांधी जी को जाना था, शुक्ला ने कहा कि सर मेरा काम तो जरूरी है ही है, अगर आप बुरा ना माने तो जहां जहां भी आप जा रहे हैं, जहां जहां भी आपकी मीटिंग है, मैं भी आपके साथ में चलना चाहूंगा। गांधी जी ने कहा वेरी वेल, चलो, and he accompanied him everywhere. Then Gandhi ji returned to his ashram near Ahmedabad.
Shukla followed him to the ashram as well. For weeks he never left Gandhi's side. हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। जहां जहां वो जाते आश्रम में बात करने, और क्या कहते हैं आप उन्हें, जहां जहां भी उनकी मीटिंग्स थी, शुक्ला जी बेचारे पीछे 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 गांधी जी के चलते रहे, जाते रहे। और उन्होंने बेग किया, उनको भीख मांगी। ही बेग टू फिक्स अ डेट। उन्होंने कहा प्लीज प्लीज एक तारीख कम से कम फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi ji arrived. He waited till Gandhi ji was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. Finally, बिहार की तरफ चल दिए दोनों लोग। Where Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party, and of India. तब जाकर के गांधी जी को उन्होंने ही, राजकुमार शुक्ला जी ने ही किससे मिलवाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलवाया, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और कांग्रेस के भी लीडर बने आगे चल के। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वॉज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. अभी पता लगेगा कि इंडिगो है क्या और इंडिगो कहाँ किसको जाता है। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some steps from his bucket pollute the entire source. How did they know he was not an untouchable? यहाँ चक्कर दूसरा ही फंस गया। वो किसी और अपने काम के लिए आए थे, राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे, और उनके नौकरों ने गांधी जी को भी अनटचेबल, अछूत समझ लिया। गांधी जी को शायद प्यास लगी होगी, उनके कुएं के पास जा रहे थे, तो उन्होंने कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी वजह से पानी गंदे हो जाएगा, बाल्टी गंदी हो जाएगी, गेट आउट, गेट अवे। इस तरीके से करके उन्होंने गांधी जी को भी ट्रीट किया। और गांधी जी अंदर मन में सोचते हैं कि यार मुझे भी खाली देख करके पहचान जाते हैं, खाली देख करके कैसे कह सकते हैं कि मैं अछूत हूं। शायद कपड़ों की वजह से, धोती पहना करते थे ऊंची, कम, ऊपर कुछ नहीं पहना करते थे, लाठी वाठी, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। सो हाउ डिड दे नो दैट आई वाज अनटचेबल? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. Muzaffarpur is another very famous city of Patna, Bihar, near to Patna, and it plays a very important role in the political history of India as well. काफी वहां पे मीटिंग्स वगैरह और पुराने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कोर्ट वोट एवरीथिंग वाज देयर। और तो वो वहां पहुंचे, विच वॉज एन राउट टू चंपारण, जो कि चंपारण जाते वक्त पड़ा था। To obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting, he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani. कोई एक प्रोफेसर साहब थे, सबसे पहले किससे मिले, आप इसको नोट कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए, अभी मिल नहीं पाए उनसे। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारी कंट्री फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, है ना, पढ़ा आप सब लोगों ने, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही इज द सेम मैन। उसके बाद गांधी जी को चीजों को ठीक से समझने के लिए कि वहां चंपारण में हो क्या रहा है, गांधी जी ने एक J.B. कृपलानी जी को टेलीग्राम लिखा। अभी पता लगेगा J.B. कृपलानी साहब भी कौन है। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, अच्छा आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे मुजफ्फरपुर के, होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। अब देखिए क्या ब्यूटीफुल चीजें कहां कहां से किधर किधर से कनेक्ट हो रही हैं। कोलकाता में शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आप सब लोगों ने सुना है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड एमिनेंट ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया,
दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैज हिज आश्रम नोन एज द शांति निकेतन इन कोलकाता। एट दैट टाइम इट वाज नोन एज कलकत्ता। गांधी जी वहां पर किसी काम के लिए गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी ये जेबी कृपलानी साहब से, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो यहां पर जब गांधी जी वापस बिहार आए, जब वापस चंपारण लाए, तो उनको इस प्रॉब्लम के बारे में पता करने के लिए उन्होंने वहां से अपना वो कनेक्शन निकाला और यहां पर उनको एक टेलीग्राम लिखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, मैं यहां पर आया हूं और आप कृपया मुझे बताइए कि ये यहां हो क्या रहा है। ठीक, ब्रिटिश रूल वॉज स्टिल गोइंग ऑन। इंडियंस ब्रिटिशर्स के घर में they were cleaning toilets, they were being made as servants and they were exploited at any level which you can think of। किसी भी स्तर तक जहां तक आप सोच सकते वहां तक इंडियंस को परेशान किया जाता था और उनका फायदा उठाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। तो ये सब कुछ चल रहा था। उसी के बीच में गांधी जी किसी तरीके से वहां पर पहुंच गए। ये सारे बड़े लीडर्स को, क्योंकि गांधी जी वॉज ए प्रोमिनेंट मैन और अफ्रीका में उन्होंने इतना टॉल्स्टॉय फार्म वगैरह काफी काम किया था अंग्रेजों के लिए, तो वो लोग उन्हें जानते थे और प्लस वकील थे। तो वो लोग ये भी समझते थे कि हम कोई ऐसा एरा गैरा लॉ इनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल कर सकते। तो कुछ लोगों को जैसे यहां से वहां से वहां, और पॉलिटिकल लीडर कांग्रेस पार्टी के भाई पेट्रियट थे, संरक्षक थे, तो इसलिए वो लोगों को जाने की थोड़ी बहुत छूट थी बाकी लोगों से। लेकिन बाकी लोगों के साथ कितनी बदतमीजी, कितना अन्याय हो रहा है, इस चीज के बारे में उन्होंने बताया है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट ऑन 15th April 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in the government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In small localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. चक्कर क्या हुआ कि जैसे ट्रेन से ये लोग पहुंचे, किस तारीख को, अप्रैल, ध्यान से पढ़िए भाई, ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, ये आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। डोंट लीव एनी वर्ड्स एनीथिंग। इट वॉज 15th of April 1917। 15th April 1917 बाय ट्रेन। By train they reached चंपारण। वहां पर कृपलानी साहब ऑलरेडी काफी बच्चों की बड़ी सी फौज लेकर के जमा थे और उन्होंने गांधी जी को एक मलकानी नाम के एक और, मलकनी और मलकानी प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, प्रॉपर नाउन है, तो मलकानी साहब के यहाँ उन्हें टिका दिया। गांधी जी ने कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के घर पे नहीं रुक सकते। शायद मैं वकील हूं, अपने ही देश का वकील हूं, उसका यही खामियाजा है, यही नतीजा है। खैर, ये सब कह करके वो कुछ दिन, 2-3 दिन उनके यहाँ रुके और इट वॉज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गांधी जी को महसूस हुआ कि ये तो काफी अच्छी बात है यार, कि कोई ऐसा आदमी जिसने हमें पहले कभी नहीं देखा और फिर भी वो बिना कोई प्रॉफिट लॉस देखे हुए उसने अपने घर में हमें जगह दी, और जब उसे पता लगा कि हम किस किस प्रॉब्लम के लिए आए हैं तो हमें सपोर्ट भी किया। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी वहां किस लिए आए हैं और कैसे पहुंचे हैं, तो वहां की सारी खबर लोगों तक, पहले मुजफ्फरपुर तक और फिर चंपारण तक पहुंच गई कि गांधी जी एक्चुअली में चंपारण आए किस लिए हैं। सो द न्यूज ऑफ गांधी जी's advent and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. सारे लोग पैदल जो भी मिला
घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट और लेग्स, ट्रेन, सब लोग इकट्ठा होने लगे अपने गांधी जी को देखने के लिए, अपने चैंपियन को देखने के लिए, अपने लीडर को देखने के लिए सारे लोग इकट्ठा होने लगे, पहुंचने लगे। एंड मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को बुलाया कि उनको थोड़ा समझा दें। दे फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने, वो वकीलों ने, जो लोग ये केस लड़ा करते थे, वो लोगों ने गांधी जी को उस केस के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि हमें फी कैसे मिलती है, किस तरीके से हम मैनेज करते हैं और किस तरीके से हम ये सारी चीजों को चलाते हैं और अभी की क्या सिचुएशन है। गांधी जी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। गांधी जी ने पहले तो वो वकीलों को खदेड़ा कि तुम लोग बहुत बेवकूफ हो क्या, बदतमीज हो क्या, बेचारे किसान किसी तरीके से अपनी जो है फसलों का उत्पादन करते हैं और तुम लोग उनसे ही इतने पैसे लेते हो। बट दिस इज हाउ इट इज। आज की तारीख में फिर भी वैसे ही हो रहा है। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, देखने को आपको मिल सकता है कि जो लोग पावरफुल है, जिनके पास पैसा है, वो बस सिंपल लोगों को किस तरह से दबा करके रखना चाहते हैं। कोई आदमी कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अधिकार नहीं है या उसके अंदर गुस्सा नहीं है या उसके अंदर कोई दुख नहीं है या उसको आवश्यकता नहीं है। इट्स बट ऑब्वियस, एवरीबडी इज नीडी। एंड ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। गांधी जी ने साफ साफ कहा कि लॉ कोर्ट्स जाने से कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? प्रॉब्ली उस समय सारे जस्टिस जो थे, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, सारे लॉज, सब कुछ ब्रिटिशर्स के थ्रू ही गवर्न हो रहे थे। तो अगर हम कोई ऐसा मुकदमा उन्हीं की अदालत में लेकर के जाएं तो वो तो वहीं से वहीं खारिज कर देंगे और फिर गरीब किसानों को, अनपढ़ किसानों को, किसी न किसी पढ़े लिखे पर्सन की तो आवश्यकता है ही है कि जो उनकी ये बात फैला सके, ये बात उनकी पहुंचा सके बड़े लोगों तक। और शायद यही रीजन है, शायद यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई। तो गांधी जी ने कहा कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। एंड where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear। उन्होंने कहा जब हमारे लोग, अपने लोग इतना डरे हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं, वैसे भी उनके पास अनाज का एक दाना खुद के खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है और उसके ऊपर हर आदमी उन्हीं को दबाया जा रहा है, तो सबसे पहले उनको उस फियर से, उस डर से आजाद कराना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। इस तरीके से ये बटा हुआ था। ज्यादातर arable is a new word for you probably, एग्रीकल्चर से ही बना है, ARABLE, arable। ऐसी जमीन जहां पर खेती बाड़ी हो सके, जहां पर एग्रीकल्चर हो सके, उसे अरेबल कहते हैं। जितनी भी उपजाऊ जमीन थी वो सारी की सारी अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स के अंडर में थी और जहां पर इंडियन लोग किराए पर रखे गए थे, इंडियन किसान किराए पे रखे गए थे कि वो उस जमीन पर फसल उगाएं और उगा करके वापस से हम ही को बेचें और हम उनका अधिकार भी उनको न दें। यही हो रहा था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। ये आई हमारी टाइटल। सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी कौन सी कमोडिटी थी जिसकी खेती वहां पर चंपारण में काफी होती थी? वो थी इंडिगो। क्या था इंडिगो? ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। जस्ट फाइंड आउट इन द नेक्स्ट क्लास, आई शेयर इट विद यू कि व्हाट एक्चुअली इज इंडिगो। जब तक आप पता करिए। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo
and surrender the entire indigo harvest as rent. लैंडलॉर्ड क्या करते थे? 15% जितना होल्ड करके रखते थे, 3/20 और 15% of their holdings they compelled or the tenants to plant. जितनी भी उनके पास थी उसकी 15% वो सब कुछ उनको उगाने के लिए मजबूर करते थे कि इतना आप रखोगे कैसे, इतना तो आपको उगाना ही है। और वो सारी की सारी होल्डिंग्स एंड इंडिगो सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और वो सारी की सारी जितनी फसल वो लोग उगाते थे वो सारी की सारी फसल रेंट बता करके खुद ही हड़प लिया करते थे, खुद ही रख लिया करते थे। वाओ! This was done by long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who were fined and they wanted their money back. तो मेरे ख्याल से just we will finish this more page. कहीं से एक तो इतनी प्रॉब्लम ऑलरेडी थी, 15% वो क्रॉप उगाते थे, उनको मजबूर किया जाता था कि वो उगाएं, और फिर उसके बाद जितनी भी फसल उगती थी वो एज अ रेंट वही लैंडलॉर्ड्स, वही अंग्रेज हड़प कर जाते थे, खा जाते थे। और इन लोगों से उनकी जमीनों के बारे में, उनकी गुलामी के ऊपर उन लोगों से साइन भी करवा लिया गया था। और फाइनली फिर पता लगा कि जर्मनी ने कोई एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर दिया है। जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है तो फिर हमारे इंडिगो की, जो ऑर्गेनिक इंडिगो की क्या आवश्यकता है भाई? ऑब्वियसली सिंथेटिक थिंग्स आर फार फार बेटर एंड दे हैव लार्ज प्रोसेसिंग। जैसे हम लोगों ने सिंथेटिक मिल्क के बारे में अक्सर सुना है, सिंथेटिक ब्रेक, सिंथेटिक क्लॉथ, सिंथेटिक फैब्रिक, एवरीथिंग विच वी हैव सिंथेटिक, जो कि फैक्ट्री में आसानी से बनाया जा सकता है, जिसमें क्रॉप जितनी देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती, उतना लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उतने लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी डरे हुए थे, उन्हें पता लगा कि जर्मनी में ऐसी ऐसी बात हो गई है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया है, तो उन्होंने कहा कि भैया हमको भी आप इतना छोड़ दो, हम भी, हमारी जमीन हमें वापस कर दो, और हम काम नहीं करना चाहते, हमें हमारा पैसा वापस कर दो। हम पैसा लगा करके बीज भी खरीदें, उगाए भी, ये भी करें, और वहां पे सिंथेटिक बना जा रहा है। व्हाट्स द पॉइंट? एट दिस पॉइंट अभी तक यही सब कुछ पहुंचा था, और गांधी जी की एंट्री हुई चंपारण में। ये सब कुछ चल रहा था इसी तरीके से जब गांधी जी चंपारण पहुंच गए। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने सारे फैक्ट जो हो रहा था, जो सच्चाई थी, वो सारी इकट्ठा करना शुरू करी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सेक्रेटरी के एसोसिएशन में गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। उन्होंने साफ साफ कहा, आप बाहरी हैं, आपको हम नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने बताया कि मैं भी इंडियन ही हूं, कहीं बाहर से नहीं आया हूं, ये मेरा अधिकार है जानना कि आप यहां बैठकर कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना परसेंट किसानों को देते हो, कितना परसेंट अपने पास रखते हो, कितना रेंट लेते हो। ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। टुडे वी स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि क्या होता है, वो गांधी जी को क्या बताते हैं, और गांधी जी किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू मस्ट पे अटेंशन। It is a very good chapter by your country. You should be proud as well. And if you have not understood anything, you can always reach me, share the video and comment so that I can know how much you are getting, how much it is helpful to you. Right? Thank you very much and you have a